want to know, one of the concerns before in the lead-up was MSMEs. Yes. And, government's figures themselves suggest that you've had, 35,000 MSMEs closed down between 2020 and 2023. That's just the official number. 35 lakh. Sorry? 35,000 you said? Yeah, as per what the minister had said last year in Parliament, he had given the number of 35,000, which clearly was a government number. I'm saying the actual numbers are far higher. I'm just trying to understand, do you think enough was done in this budget for MSMEs? So I think Mudra loans went up from like 10 lakhs to 20 lakhs. I feel the fact remains that employment matters. It's not necessarily whether MSCs hire them or large companies hire them. And Manish Sabharwal often rightly says, right, at the end of the day, everybody wants a job offer letter, wants some people who cannot be fired at will, at least 2 months notice, etc., etc. So MSMEs are important, but let us also not romanticize MSCs, because they are not going to create the kind of formal employment that large corporates can. Rajdeep, Yes. Additional financial allocations and announcements of credit, guarantee and technology is not going to, get the MSMEs that is required. What is required for MSMEs is to remove the compliance and regulatory burden on the ground, the regulatory cholesterol. The thing that they face every day are the calls from the inspectors and all of that. And I think that hasn't yet. Now, what she announced was Jan Vishwas 2.0. I think the sooner they get that out, to get the trust of the small businessmen and small entrepreneurs back to them. At the moment, they see the whole climate as being business non-friendly. That has to change. And that, Harsh, I think, MSMEs will continue to play a very important role. So if you're wondering what to eat for lunch and you're looking for signals in the budget papers, go for shrimps. Order in some shrimps. I think a lot of focus in the budget, clearly the flavor of the palate, Rajdeep I'm sure is already placing some order, is on shrimps. I want to show some That's political, again the Andhra connection. Political, Aquaculture. Andhra and Gujarat, but Gujarat is always there. Andhra, they've got now, so they want to encourage everyone to go out and eat some shrimps. I want to show you some political reactions to the union budget. We'll start with Akhilesh Yadav. Let's see how, because the likes of the Trinamool are calling this a Bihar Andhra Pradesh budget. So let's take a look at how the politics is playing out over this budget. उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं. अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी. तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने. बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है. 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से. ये यूनियन बजट जो 2024-25 का पेश किया गया था, एक तरीके से सबके लिए ड्रीम बजट है, सब सेक्शन के लिए और खास करके युवाओं के लिए और महिलाओं के लिए. इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकॉर्ड नंबर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एलोकेशन हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये ऐतिहासिक है. ये बिहार को दे दें, झारखंड को दे दें, यूपी को दे दें. अब जनता जो आज देख रही है, इनको हटाना चाहती है. अब ये निश्चित तौर से आम जनता के हित के लिए एक भी, क्या बनारस के लिए कोई कल कारखाना आया है? कोई फैक्ट्री का अनाउंसमेंट हुआ है? यूपी के लिए कुछ हुआ है? मुझे नहीं लगता कुछ भी किए. जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र में कुछ नहीं दे पा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये पूरा बजट निरर्थक है और जनता को केवल भ्रमित करने के लिए. Yes, Rajiv Kumar, you wanted to intervene. Yeah, I wanted to intervene to say that for me, one of the big ideas for the next 5-10 years is the recognition that it is the urban centers which will drive growth. And so therefore, the whole focus on reducing the stamp duties here, to get the sort of the new Awas Yojana here, the transit development, transit oriented development,
the street market development for the vendors, etc. The whole, the big thing about 14 cities above 30 lakhs getting subframe, I think that's a very good thought, because that is what is going to happen in the next 10, 15 years. And because there are 400 million people waiting to be urbanized. And all of these measures are going to help that, influence that. And then the PM Awas Yojana for 1 crore new houses for the urban poor. For industrial dormitory type housing for the workers. We've tried in China all the time, but now for the first time going to be here. I think these are very good thoughts, very good ideas, and that will help, spur growth, because the urban centers, because urban cities are going to be the drivers of growth going forward. Okay, for a moment, since you saw the political reactions, the reactions are not surprising. The states which feel left out are usually the opposition-ruled states in this instance. But that happens with most governments, particularly when you are now in a coalition arrangement and you are dependent on two allies. How do you see that in terms of this kind of federal concept that essentially is at the heart of India? Do these states which feel left out really have a case when they see all these allotments to Andhra Pradesh and Bihar? So in Indian polity, the state-specific schemes by the central government are a rarity. But the compulsion of coalition government is what is driving. You coined this word, Purvodaya Vikas Yojana or something, but essentially it is meant for Bihar and Andhra Pradesh. So it is understandable, but certainly Odisha, which is there right in this zone, will feel quite a lot sorry about it. Let's see what is there for Odisha and how does it react. Bengal, you can politically explain, perhaps for the reasons which are known, you may not get it. But your remark about the wider, I think there is going to be resentment from the remaining states that why should we be discriminated against. And this is a very fundamental change from the way we have been doing for the last 75 years. So that's the nature of coalition politics. It's not as if it started now. This is Narendra Modi 3.0 is a coalition government. But earlier coalition governments also did not do it. Go back to Narasimha Rao, go back to Atal Bihari Vajpayee government. They were not as partisan in the... No, but look at the optionality. The choice was, do you push for a special status for Andhra Pradesh and Bihar, which was the original demand, which would have involved far higher financial a special state was a no-go anywhere. It was never going to happen, Rahul. At least certainly Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu. If you've got allies, you have to take care of it. The only thing happens is the package. So we want to go across to a group of farmers who are standing by with my colleague Chitra Tripathi and understand. We've heard from the markets, we're hearing from India Inc., we're hearing from economists. Let's hear from the Desh Ka Kisan. Chitra, what are you picking up by speaking to these farmers? How are they reacting to this union budget for 25? क्या कह रहे हैं जिन किसानों से आप बात करिए, Chitra? देखिए राहुल, इस वक्त मेरी मौजूदगी है नोएडा के खरौली गांव में और यहाँ पर बहुत सारे किसान हमारे साथ मौजूद हैं। 1.5 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट यहाँ पर सरकार की ओर से दिया गया है ताकि खेती किसानी को बढ़ावा दिया सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा सके, चाहे दलहन हो तिलहन हो, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर सरकार की ओर से बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। राकेश टिकैत जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंडिया टुडे पर, सीधे इनसे बातचीत करते हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब ये जो बजट आ गया है निर्मला सीतारमण का, मोदी 3.0 का, क्या बातें आपको अच्छी लगी, क्या बातें मीठी, क्या खट्टी लगी, क्या लेकर जाना चाहेंगे और क्या उम्मीदें ऐसी रह गई जो लग रहा था कि पूरी हो सकती थी और नहीं हुई? राकेश जी, देखो, खरीद की गारंटी जब तक नहीं देंगे, अगर इनको बजट बढ़ाना तो पूरी खरीद कर लो, खरीद ये करेंगे नहीं तो एमएसपी गारंटी कानून की बात कर सकते थे, वो इनसे हुई नहीं। और बिहार जैसे स्टेट जहां पे बहुत पैकेज दिया गया है, एक ये भी दे देते कि भाई जो पैसा हमने दिया है बिहार को, उससे जो वहां की मंडी सिस्टम होंगे, बाजार समिति, वो बहाल करेंगे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए। अब बिहार के किसान नेता तो आकर बोलते नहीं हैं, आप यूपी के किसान नेता बिहार के मुद्दे को लेकर आगे चलेंगे। सबसे ज्यादा लेबर तैयार हो रही है, तो क्यों हो रही है? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर पूरा बिहार का खत्म कर दिया, मंडी सेक्टर है ही नहीं वहाँ पे। इतना बिहार पे क्यों फोकस कर रहे हैं आप? अब आज का बजट कैसा लगा? पहले ये बताएं ना, इंडिया टुडे के दर्शक जानना चाहते हैं कि राकेश टिकैत जी को आज का बजट कैसा लगा? देखो, दिल्ली के कागजू में तो बजट सरकार की नजरों में तो ठीक है, लेकिन किसान के वहां पे इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सोलर पे
चीज हम छोड़ दे कि वो उस पर कितनी सब्सिडी देंगे, उसको छोड़कर दूसरा ऐलान और किया गया है, उसका किया गया है, वो कितनी देंगे उस पे वो देख लेते हैं। लेकिन दूसरा और ढुलमुल पूरा बजट रहेगा, ढुलमुल था बजट, ढुलमुल रहेगा। कौन सी सबसे बड़ी उम्मीद थी जो सरकार की ओर से पूरा देखो, सरकार की उम्मीद ये है, सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि भाव मिल जाए हमको। ये भाव पे बात नहीं करते, भाव मत मांगो इनसे। बजट में दिया कि हम दालों को बढ़ावा देंगे, कौन सा फार्मूला है भाई? सरकार दालों का प्रोडक्शन बढ़वा देगी? दालों का प्रोडक्शन, तेल का प्रोडक्शन तो किसान बढ़ाएगा, अगर उसको पैसे मिलेंगे, उसकी खरीद होगी तो बढ़ा देगा। तो किसान को वो सहूलियत भी देना तो सरकार की कहाँ जिम्मेदारी है ना, ताकि उसकी फसलों में 8-8 और दिन ज्यादा तक जिंदगी आए, उसकी फसलें मध्य लहराती प्रदेश रहे, जैसा में कि इस वक्त पीछे मक्का की फसल लहरा रही है। 8-10 दिन तक मध्य प्रदेश में किसान चना लेके, दालें लेके खड़ा रहता है, उसकी खरीद नहीं होती। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश में है, वहाँ उड़द पैदा होता है जी, खरीद नहीं होती। रात को मंडियां चलती है ललितपुर में, नेफेड खरीद करता है, 4 दिन में उनसे भाग जाता है, अभी तो करता ही नहीं। जिस मक्का की हम बात करते हैं, अकेले बिहार में इसी मक्का की फसल एमएसपी से नीचे बिकने में करीब 8,000 करोड़ का नुकसान है अकेले बिहार को। आप उनको फसलों के दाम दे दो। जो बड़ी बातें सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से की गई हैं, जल्दी से मैं अपने दर्शकों को बताते हुए फिर अगला सवाल आपसे पूछूंगी। देखिए, प्राकृतिक खेती पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। अगले 2 सालों में 2 करोड़ किसानों को बाकायदा इसका समर्थन दिया जाएगा। तिलहन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की बात कही गई है, बड़े पैमाने पर क्लस्टर ताकि सब्जी उत्पादन को बढ़ावा मिल सके। कृषि अवसंरचना में डीपीआई की बात इसमें कही गई है और 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण की बात कही गई है। झींगा ब्रूट स्टॉक्स की बात कही गई है। सहकारी क्षेत्र के राष्ट्रीय सहयोग की भी बात कही गई है। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर करवाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे और इसी के साथ ही साथ सरकार का जो फोकस है वह सरसों, मूंगफली, सनफ्लावर, सोयाबीन जैसी फसलों पर भी है। फसलों पर तो है, बात घूम फिर कर कीमत कौन देगा? आप एमएसपी पर गारंटी चाहते हैं? एमएसपी गारंटी में यह होगा कि सरकार को जितनी खरीद करनी वो कर ले। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो उसके कम पे खरीद ना करे, ये गारंटी कानून बन जाए एक। आप बढ़ाने की बात करते हो, किसान तो बढ़ा रहा है, माइक आप ऊपर से पकड़िए। किसान तो बढ़ा रहा है ना, लेकिन उसको कीमतें नहीं मिलती, वो कर्जे में चला गया। आप एक तरफ प्राकृतिक खेती की बात करते हो, दूसरी तरफ नैनो यूरिया को बढ़ाने की बात करते हो। वो फर्टिलाइजर है जिसका इस्तेमाल किसान करता है और वो जबरदस्ती सरकार उसको देती है और उसका कोई लाभ उसका नहीं अब है। उधर वाले कहते हैं कि राकेश टिकैत तो हर अच्छे काम में भी नुक्स निकालते हैं। नहीं, और हमने देखा है सरकार की ओर से जितने भी बजट आए उसमें एक ही रटाया उनका जवाब रहा। उधर दूसरे पक्ष वालों की ओर से लगातार ये कोई भी अच्छी बात आपको नहीं लगी है? आज कृषि क्षेत्र के लिए जो व्यवस्था की गई है सरकार की ओर से, अगर सोलार्स को छोड़ दे वो कितनी सब्सिडी उस पर देंगे और वो क्या इसी बजट से जाएगा क्या? तो वो थोड़ा सा अलग बजट की व्यवस्था की गई है। ये 1,52,000 करोड़ से अलग सोलर की व्यवस्था की गई तो उसका थोड़ा ठीक लगता है कि सरकार उस पर काम कर रही है, ठीक है, लेकिन दूसरे उस पर नहीं काम कर रही। और ये जितना पैसा है नाम किसान के लिखा जाएगा, आप इसको देख लेना किस किस सेक्टर में जाएगा। लेकिन राकेश टिकैत जी, चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम बैठे हुए हैं, अगर सिर्फ यूपी की ही बात करें, 25 करोड़ की आबादी वाला राज्य, यहाँ पर पूर्वांचल के किसानों की अलग समस्या रहती है, पश्चिमी यूपी की अलग समस्या। In terms of those were reactions from some of the farmers.